Hello guys, let's continue our journey to learn Core Java. So in this video, I will be going through variables, data types, and typecasting. In last video, we have seen the core structure of a Java program, how we can write a hello world program. We have seen in the last video. If you haven't checked it out, you can go to my playlist and view the video over there. So in this video, we'll be learning variables, data types, and typecasting, which is a concept in Java. So now, what is variable? So variables are something. It's something like container. वो एक container होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम कुछ store कर सके. So container to store some value, right? अब जैसे कि एक बार हम किसी वेरिएबल में किसी भी चीज़ को स्टोर कर देते हैं, देन जो वेरिएबल है वो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पे हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. एंड इसमें भी वेरिएबल्स में भी ऐसा होता है कि दैट कैन बी यूज्ड इन पर्टिकुलर ब्लॉक, ठीक है. तो फॉर एन एग्जांपल, इफ आई हैव अ वेरिएबल ओवर हियर, राइट, then I can use a variable inside this particular method itself only, right? So there are different things a variable can be accessed. That is another part. But what are variables is, so a variable is something to store some value, right? Now, of a value, ठीक है. अब हमारे केस में इन कोडिंग दैट इज नथिंग बट स्ट्रिंग वैल्यू, right? Integer value, that can be an integer value, right? That can be a decimal value, right? That can be a boolean value. Boolean value means true or false, right? In conditions we need a boolean for whether the flag is true or the whether we want to do that or not. Yeah, yes or no, we can say yes or no questions can be answered through boolean. Okay. So ये दो चीज़ है, वेरिएबल डेटा टाइप. टाइप कास्टिंग आई विल बी कवरिंग इट आफ्टरवर्ड्स, आफ्टर वी कवर वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स, ठीक है. तो व्हाट इज वेरिएबल? तो वेरिएबल को हम कंटेनर टू स्टोर समथिंग, एंड डेटा टाइप्स इज अ टाइप ऑफ अ वैल्यू, राइट. अब वैल्यू हमारे केस में क्या है? स्ट्रिंग, इंटीजर, डेसिमल एंड बुलियन. नाउ व्हाट इज द सिंटैक्स? सिंटैक्स ऐसा होता है, टू डिक्लेयर वेरिएबल we have to use type. Type is nothing but the data type and variable name, right? आप इस तरीके से भी कर सकते हो. दिस इज नथिंग बट सिंपल डिक्लेरेशन, राइट? सिंपल डिक्लेरेशन. और या तो आप ऐसा भी कर सकते हो, टाइप वेरिएबल नेम equals to value itself, right? So what we are doing is, we are declaring the value, plus we are assigning it also. Sorry, we are what we are doing is declaring the variable and assigning value. Okay, we are doing both the things over here in the same thing. So let's try some examples for the first type, simple declaration. So if I want to declare a variable having a number, or we can say in which we can store the number, okay, then I will be writing int and the variable name. For an example, some number. ठीक है. वेरिएबल नेम के कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे कि वो यूनिक होना चाहिए. फॉर एन एग्जांपल, मैंने एक सम वेरिएबल लिखा है, तो मैं दूसरी बार सेम चीज़ नहीं कर सकता, ठीक है, वो मुझे एरर देगा. हाँ, केस सेंसिटिव है जावा, इसलिए मैं सम नंबर में से एन स्मॉल कर देता हूँ तो वो चलेगा, ठीक है. यहाँ पर आप स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं कर सकते, दैट्स ऑल्सो एन एरर, राइट. सी, यू कैन सी ओवर हियर. अंडरस्कोर जैसे कि है वो एक चल सकता है, बिकॉज इट्स मतलब वो एक्सेप्शनल केस है, ठीक है. बाकी आप ऐसे मतलब कोई भी नाम सब चालू नहीं कर सकते, ठीक है. 2 3 ऐसे चालू नहीं कर सकते, ठीक है. डिजिट से चालू नहीं हो सकता, बट यस यू कैन पुट डिजिट समवेयर इन द मिडल और एट द एंड, दैट्स ओके. बट स्टार्टिंग में आप वो नहीं रख सकते. स्पेशल कैरेक्टर्स एट स्टार्टिंग आर नॉट अलाउड, और एनीवेयर इनसाइड द नेम इज नॉट अलाउड, ठीक है. एंड इट्स कैन सेंसिटिव, सो इट शुड बी यूनिक, right? Okay. So I have a variable name some number. So अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस वेरिएबल के अंदर मैं कुछ भी स्टोर करवा सकता हूँ, ठीक है. और इसके अंदर मैं कुछ भी मतलब ओनली नंबर्स फ्रॉम only integer numbers starting from 0 to infinite, right? So I can store any integer number in the sum number, right? So what I will be doing is sum number equals to 1 2 3, right? So यहाँ पर मैंने क्या किया है, this statement is declaring and this statement is assigning. So इस दोनों में मतलब ये हमने अलग अलग किया. The same thing you can do in single line is int sum. I'll be putting number as small
and 1 2 3 or 1 2 3 5. ठीक है, so both are the same things but different way to write it. ठीक है, ये वाला केस तब यूज होता है जब यू हैव टू डिक्लेयर वेरिएबल एंड आफ्टर दैट यू डोंट नो व्हाट वैल्यू शुड बी केप्ट, राइट? आपको पता नहीं कि कौन सी वैल्यू आपको रखनी है, ठीक है? तो आप क्या करते हो, जस्ट डिक्लेयर कर देते हो एंड आफ्टरवर्ड्स जैसे भी आप प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन या कोडिंग करते हो उस तरीके से आप लिख लेते हो, राइट? ओके, सो दैट दिस इज अबाउट द वेरिएबल नेम और okay. Data types, data types में string is used to store some name or any sentences or something like that, ठीक है? array of characters भी हम बोल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने लिख रहा हूँ jam learning welcomes you, let's learn, राइट? ऐसा मैंने कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है? अब यहाँ पर मैं इंट नंबर लिख के कोई नंबर स्टोर कर सकता हूँ, जैसे मैंने ऊपर दिखाया आपको। मेरे पास डबल है, ठीक है? डबल से मैं क्या कर सकता हूँ, I can sorry, I have forgot to write the variable name, ठीक है? सो डेसिमल नंबर करके मैं एक वेरिएबल नेम दे देता हूँ। मेक श्योर आप जब भी कोडिंग करते हो तो मतलब आप जो भी वेरिएबल का नाम दो कुछ ढंग का हो, ठीक है? जस्ट लाइक ऐसा नहीं कर सकता मैं जस्ट लाइक डी मैंने रख दिया, ऐसा आप मत करिए, ठीक है? वो एरर नहीं देगा बट दैट विल नॉट बी गुड इन लॉन्ग टर्म, राइट? आपकी कोडिंग प्रैक्टिस को वो बिगाड़ देगा। बुलियन है तो बुलियन फ्लैग रख सकते हैं, ठीक है? फ्लैग आइदर इट्स ट्रू और फॉल्स, राइट? और आई कैन जस्ट डू लाइक दिस, राइट? डिपेंड्स। सो ये था वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। व्हाट आर टाइप कास्टिंग, ठीक है? अब टाइप कास्टिंग का मतलब होता है जो अदर कंसेप्ट है जावा में, ठीक है? दूसरी लैंग्वेजेस भी, बट वी आर टॉकिंग हियर अबाउट जावा। सो जावा में एक टाइप कास्टिंग का एक टॉपिक है विच इज समथिंग लाइक कन्वर्टिंग converting one data type to other, converting one data type टू अनदर डेटा टाइप, ठीक है? उसमें दो टाइप आते हैं, नेरो टाइप कास्टिंग एंड वाइडनिंग टाइप कास्टिंग। वो क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, बट उससे पहले कि मतलब होता क्या है टाइप कास्टिंग में, ठीक है? तो टाइप कास्टिंग का मतलब, कास्टिंग का मतलब होता है किसी चीज में आपको कन्वर्ट करना, और यहाँ पे कन्वर्जन किसका हो रहा है, टाइप का, ठीक है? तो फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर एक सम नंबर है, ठीक है? जो सम नंबर अभी किसका क्या टाइप है उसका, तो कि उसका टाइप है यहाँ पर इंट, मतलब इंटीजर। अब इस इंट को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, फ्लोट में या डबल में, दैट इज डेसिमल नंबर, ठीक है? तो मैं प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में मुझे कहीं ऐसा लगता है कि भाई ओके सम नंबर है वो मुझे अभी इंट नहीं चाहिए, अभी वो मुझे डबल चाहिए, ठीक है? सो दैट कन्वर्जन ऑफ इंट टू फ्लोट इज नॉन एज टाइप कास्टिंग, ठीक है? तो इस सम नंबर को हम मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगा, डबल में, ठीक है? अब जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया कि नैरो एंड वाइडनिंग दो कंसेप्ट होते हैं, ठीक है? तो नैरो और वाइडनिंग कंसेप्ट में इसको आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है? अब जैसे कि आपको पता है इंट और फ्लोट का मैं एग्जांपल लेता हूँ, और वी कैन से डबल, यहाँ पर डबल का एग्जांपल लेता हूँ। सॉरी, तो हैंड राइटिंग इज रियली बैड इन दिस थिंग। ओके, सो इंट और डबल। अब आपको पता है कि इंट की साइज है वो क्या है, कम है, ठीक है? और डबल की साइज क्या है, बड़ी है। साइज का मतलब जो 4 बाइट और 8 बाइट होता है ना, उस तरीके से, ठीक है? तो मान लीजिए कि इंट एक कंटेनर है, ठीक है? तो दिस वन इज इंट कंटेनर एंड दिस वन इज अ डबल कंटेनर। सो मैंने इसको एक साइज के रेफरेंस से क्रिएट किया है, ठीक है? तो मान लीजिए कि डबल की साइज ज्यादा है, ठीक है? तो इसको मैंने बड़ा किया है और इसका साइज छोटा किया है। अब आपको पता होगा कि कोई भी बड़ी चीज के अंदर हम छोटी चीज आराम से सेट करवा सकते हैं, ठीक है? तो दैट दिस थिंग कैन बी प्लेस्ड इनसाइड दिस वन, ठीक है? तो इसको हम क्या बोलेंगे, वाइडनिंग। और वाइडनिंग जो मैंने यहाँ पे लिखा है वाइडनिंग टाइप कास्टिंग, ठीक है? तो वाइडनिंग टाइप कास्टिंग मीन्स एक बड़ा है, ठीक है? ठीक है, एक बड़ा है उसको हमें छोटे के अंदर रखना है, ठीक है? तो स्मॉलर इनटू बिगर वन, ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या यूज कर सकते हैं, हम इंट को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, डबल में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है? अब उसके लिए ये जो वाइडनिंग है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है? वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग, ठीक है? दैट इज ऑटोमेटिक प्रोसेस, ठीक है? ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ एक लाइन लिखेंगे यहाँ पे,
जैसे कि मुझे एक डबल एक नंबर मैंने दिया हुआ है, ठीक है, डबल डेसिमल नंबर, तो इसमें ही मैं यूज कर देता हूँ डबल डेसिमल नंबर इक्वल्स टू सम नंबर, ठीक है। यू कैन सी देयर आर नो एरर्स ओवर हियर, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन सम नंबर को मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, सम नंबर इन डबल, ठीक है। और what I can do is control C, जो भी सम नंबर इन इंट, राइट। अब मैं इसको रन करता हूँ एंड you can see it's just as okay. My bad, here it will be decimal now because I have converted into decimal. So yeah, so you can see it's if it is an int then there will be no decimal, and if it is in float, so or we can say double, then it will have the decimal point zero over there. So this thing is known as a वाइडनिंग टाइप कास्टिंग, ठीक है। अब मैं आपको वही चीज नैरो नैरो टाइप कास्टिंग समझाता हूँ कि फॉर एन एग्जांपल सेम एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पर कि मुझे एक फ्लोट है, सॉरी एक डबल है यहाँ पर, ठीक है, एक डबल है, उसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, इंट में। सो एज वी नो इंट का साइज छोटा है और इसका साइज बड़ा है डबल का, सो वी कैन नॉट पुट दिस थिंग इनटू द इंट, right? So double cannot be converted to int automatically, but it can be converted manually. So this narrow one is bigger into smaller one, and example can be we can take double to int, and this process is nothing but a manual process. So what you need to do is, अब जैसे कि यहाँ पर मैंने एक डबल में कन्वर्ट कर दिया है, तो मैं उसी चीज को मैं किस में कन्वर्ट करने की ट्राई करता हूँ, इंट में। सो इंट for an example, converted converted value equals to, I will write decimal number, right? So over here you can see मैंने जब यहाँ पर सम नंबर int है, ठीक है, उसको मैंने डबल में कन्वर्ट करने की ट्राई की तो उसने कुछ एरर नहीं दिया, बट यहाँ पर मैं सेम चीज डबल को इंट में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट अ मैनुअल प्रोसेस। यहाँ पर एक एरर आपको दिखाई रही होगी कि इनकम्पेटिबल टाइप्स फाउंड डबल रिक्वायर्ड इंट, ठीक है, तो उसको वो ऑटोमेटिक नहीं कर रहा है, तो हमें क्या करना है, इसको मैन्युअली करना है। तो मैन्युअली में कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे ब्रैकेट करना है और उसको बता देना है, ठीक है, कि यू हैव टू चेंज दिस नंबर इनटू इंट। सो दैट्स ये जो एरर थी वो चली गई। एंड अगेन मैं क्या करता हूँ, सेम चीज़ सेम लाइन यहाँ पे लिख रहा हूँ, बट अब मैं किसको प्रिंट करवाऊंगा, कन्वर्टेड वैल्यू, ठीक है। कन्वर्टेड वैल्यू कौन सी है, इंट में है। सो सम नंबर इन, ओके वी कैन से कन्वर्टेड वैल्यू इन इंट, ठीक है, एंड रन। Yeah, so you can see first it was in the integer, afterward it's changed to double, which is widening typecasting, and again we converted double into int using narrow typecasting, right, which is a manual process. So we need to write this thing over here, right? If I'm converting something else into this one, so I have to write the data type in the bracket, right? Yeah, so that's all for these three concepts: variables, data types and typecasting. ये बहुत ही easy concepts है। if आप like किसी ने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर सी या सी प्लस प्लस कोई भी सीखी होगी, देन यू मस्ट नो द वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स, ठीक है। बट जैसे कि आपको पता है कि हम पहले से ही मतलब कोर्स से चालू कर रहे हैं, सो मैं ऐसा प्रिटेंड कर रहा हूँ कि आपको मतलब जीरो नॉलेज है अबाउट प्रोग्रामिंग, सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग सो डीप इनटू these things. But let me know if I'm going too deep into these things and you just want to skip these things and going towards some important concepts as well. Yeah, so that's all from my side. Bye, have a great day.